Hello students, welcome to our class 10. Last time we discussed substitution method. एक ही मेथड हमने अभी तक डिस्कस की हुई है, उसमें ये लास्ट लेक्चर है ये मेथड का. तो देखते हैं उसमें 3 या 4 क्वेश्चन बाकी है. तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से. लास्ट टाइम हमने वीडियो में 11 क्वेश्चन देखे हुए हैं. क्वेश्चन नंबर 12. Question is a taxi charge in the city consists of fixed charge together with the distance covered. यानी कोई एक सिटी में टैक्सी का चार्ज है. आप टैक्सी में बैठते हो, कोई फिक्स चार्ज लग जाता है. आप जितना किलोमीटर कवर करते हो वो किलोमीटर बेसिस पर भी वो चार्ज लगता है. दोनों का टुगेदर आपको पे करना पड़ेगा. ओके, चलिए फिर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 and for the journey of the 15 kilometers the charge paid is 155. What is the fixed charge and what is the charge per kilometer? Okay, जो फाइंड करना है उसको हम x या y सपोज कर लेंगे. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले क्या फाइंड करना है? What is the fixed charge and the charge per kilometer? Suppose that question number 1. Suppose that the fixed charge ₹x and the charge per kilometer equals to ₹y. यानी कि जो फिक्स चार्ज है वो हमारा x पे हो जाएगा और जो चार्ज पर किलोमीटर है यानी कि आप 1 किलोमीटर आप 1 किलोमीटर जर्नी करते हो तो उसको y रुपीज आपको पे करना पड़ेगा और जो फिक्स चार्ज है वो फिक्स चार्ज एक ही बार होगा. चलिए अब जर्नी होती है कितने किलोमीटर की? 10 किलोमीटर की. सो द चार्ज ऑफ 10 किलोमीटर्स चार्ज फॉर 10 किलोमीटर्स. 10 किलोमीटर्स में कोई फिक्स अमाउंट होगी, फिक्स चार्ज प्लस y पर किलोमीटर. हाउ मच किलोमीटर? 10 किलोमीटर. एंड हाउ मच he or she paid? He paid 105 for 10 kilometers. सो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन. ओके, चार्ज फॉर 15 kilometers, fixed charge for x rupees and y charge per kilometer. How much travel? 15 kilometer journey. Okay, ये जर्नी 15 किलोमीटर की कॉस्ट कितनी है? 155. This is your equation number 2. Solve equation 1 and equation 2 by substitution method. तो क्या होगा? इसका सॉल्यूशन करो तो लिखो from इक्वेशन 1 में से x प्लस 10y which is equals to 105. x को सब्जेक्ट बनाओ, so 105 minus 10y, this is the value of x and give it equation number 3. Put this value x which is equals to 105 minus 10y in इक्वेशन नंबर, देखो यहाँ पर मैंने फॉर्म 1 किया था, सो इक्वेशन नंबर 2 पुट करना पड़ेगा. सो x प्लस 15y which is equals to 155 and what is the value of x? x is the value 105 minus 10y plus 15y. इसे लेके क्या पुट करनी है इक्वेशन 2 में. इक्वेशन 2 में पुट करूंगा तो x plus 15y which is equals to 155. वो तो जैसे भी डिस्कस किया था, x की वैल्यू पुट की यहाँ पर 105 minus 10y. ओके, और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया तो 105 goes to this side, it become negative minus 105 and 15 minus 10 which is equals to 5y. So 5y which is equals to subtraction लेगा तो ये क्या आएगा? आंसर इसका 50. So y is equals to 10 and put y is equals to 10 in
equation number 3, we get x which is equals to 105 minus 10 into y, and what is the value of y? Y the value 10 times 100, 105 minus 100 which is equals to 5. So the cost of fixed charge here, fixed charge which is equals to 5 rupees, and cost of y charge यानी कि cost of charge per kilometer which is equals to 10 rupees per kilometer. Okay, question में और भी given है, how much does a person have to pay a traveling for a distance 25 kilometers? 25 kilometers. अगर कोई पर्सन को 25 किलोमीटर की जर्नी करनी है, so how much amount he or she will have to pay? So find for a distance charge for distance 25 किलोमीटर या चार्ज फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा? ये अपना इक्वेशन कैसा ही होगा, x फिक्स चार्ज 25 into y which is equals to, ये हमें फाइंड करना है. चलिए x की वैल्यू हमें मालूम है, क्या है यहाँ पे 5 प्लस 25 किलोमीटर गिवन है, and what is the charge of per kilometer? Per kilometer charge is 10 rupees, so multiply by 10 with 25 which is equals to 250. 250 plus 5 255, so rupees 255 person have to pay for the traveling 25 kilometer distance. Okay, so ये था आपका आंसर, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30. चलो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पर आईएमपी क्वेश्चन भी उसके साथ साथ. क्वेश्चन नंबर 30, I read the question. A fraction become 9 by 11 if 2 is added to both numerator and denominator. यानी कोई फ्रैक्शन है, उसको उसमें 2 ऐड करने से, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करना होगा और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करना पड़ेगा, तो वो फ्रैक्शन बन जाएगा 9 by 11. चलिए फिर क्या गिवन है? फिर गिवन है कि if 3 is added to both numerator and denominator it become 5/6. अगर मैं 3 ऐड कर दूं वही नंबर में, तो वो नंबर क्या हो जाएगा? 5/6. Find the fraction. It means we have to find what value? We have to find fraction. fraction किस फॉर्म में होता है? P/Q फॉर्म में होता है. तो सपोज कर लेते हैं कि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर है वो P है या x डाल लो. क्लियर है? कुछ भी आप सपोजिशन कर सकते हो, x ले लो तो भी चलेगा. चलो यहाँ पे सपोज x कर लेते हैं, इसको सपोज कर लेते हैं y. So numerator which is equals to x and denominator which is equals to y. चलो शुरू करते हैं. Suppose that in a fraction, the numerator x and the denominator y. Okay, numerator x and denominator y. So fraction become x upon y. तो अब क्वेश्चन में क्या है? ये फ्रैक्शन बिकम 9 by 11 कब? If 2 is added to both numerator and denominator. यानी कि ये जो फ्रैक्शन है फर्स्ट कंडीशन, उसमें क्या गिवन है? फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट केस में कि फ्रैक्शन कितना होता है? 9/11. कब होता है? जब ये फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 2 क्या होता है? ऐड होता है. तो इसको सिंपलीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा यानी कि x + 2 और 9 मल्टीप्लाई होगा y + 2 के साथ. 11 यहाँ पे, y + 2 यहाँ पे.
सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या बनता है ये 11x प्लस 11 2 जा 22, फिर यहाँ पे 9y एंड 9 2 जा 18। ओके 9x इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 11x माइनस 9y, 18 इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो वो क्या हो जाएगा प्लस 4, 22 प्लस है माइनस 18 which is equals to plus 4। ये भी इक्वेशन नंबर 1। चलिए सेकंड टेस्ट क्या गिवन है, सेकंड टेस्ट में गिवन है कि if 3 is added to both numerator and denominator and the fraction become 5/6, यानी कि न्यूमरेटर में हमने 3 ऐड करना है, डिनोमिनेटर में 3 ऐड करना है, सो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 5/6, यानी कि 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई, y यहाँ पे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा ये 6 into x plus 3 which is equals to y plus 3 into 5, y plus 3 into 5 सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा ये 6x plus 6 3 18, 5y plus 15, इन दोनों को इस तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा ये 6x minus 5y minus 15, इस साइड यहाँ पे प्लस 18 है, सो प्लस 3 which is equals to 0। ये मिला इक्वेशन आपको। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए क्या मिलेगा तो फिर आपको, यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, फ्रैक्शन फाइंड करना है। फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन फाइंड करना है, x अपॉन y फ्रैक्शन। तो यहाँ पे x और y इन दोनों की वैल्यू आपको सॉल्व करनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलिए क्या करता हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 में से क्या करता हूँ, 11x माइनस 9y प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 0, 9y को उस तरफ भेज दूं तो क्या हो जाएगा 9y विच इज इक्वल्स टू 4 प्लस 11x, 9 डिनोमिनेटर में, सो y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 11x डिवाइडेड बाय 9, ये वैल्यू आई, गिव इट इक्वेशन नंबर 3। Put y is equals to 4 plus 11x upon 9 in equation number 2। क्यों नंबर 2, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिया है, इसलिए मैं इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट करने वाला हूँ। सो द इक्वेशन नंबर 2 हियर 6x minus 5y plus 3 which is equals to 0, उसमें y की वैल्यू ये पुट करनी है 6x plus 5 into माइनस है यहाँ पे 4 plus 11x upon 9 plus 3 which is equals to 0। चलिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो क्या मिलेगा आपको आंसर, यहाँ पे होगा 6x माइनस 5 मल्टीप्लाई कर दो, सो 20 plus 55x divided by 9 plus 3 which is equals to 0। 9 LCM होगा और 9 जो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 9 6 54x माइनस 20 माइनस 55x क्यूब, मैंने ये ब्रैकेट भी ओपन कर दिया और 9 3 प्लस 27 which is equals to 0। ओके 54 55 यहाँ पर प्लस ये माइनस, 55 में से 54 सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आएगा 1 बट माइनस x 27 एंड minus 20 become plus 7 which is equals to 0, therefore x is equals to 7। x की वैल्यू क्या मिली आपको 7, और ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है इक्वेशन नंबर 3 में। चलिए इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू पुट करता हूँ मैं, x is equals to 7 in equation 3, put x is equals to 7 in equation 3, so y which is equals to 4 plus 11x divided by 9, यानी कि 4 plus 11 into 7 divided by 9, 11 7 are 77, 77 plus 4 78, 79 80 and 81 divided by 9, 9 9s are 81, so 9 y is equals to क्या आया वैल्यू
9. So x is equals to 7, y is equals to 9. So the fraction x upon y which is equals to 7 upon 9. आप चेक करो तो दोनों में 2 ऐड करो क्या मिलेगा आपको 7 plus 2 9 9 plus 2 11 मिल रहा है 9 upon 11. ओके सेकंड दोनों में 3 ऐड करो तो क्या मिलेगा अगर दोनों में 3 ऐड करो तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 9 plus 3 ये क्या हो जाएगा 12. इट बिकम 5 upon 6. ये 5 upon 6 है यस डेफिनेटली इसको रिड्यूस करो 5 2 जा 10 6 2 जा 12 5 upon 6. तो दिस इज योर आंसर इज x upon y fraction which is equals to 7 upon 9. Okay students, so last question of this method. Question is 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, and 5 years ago Jacob's age was 7 times to his son. What is the present age? चलिए फाइंड करने को बोला है दोनों की प्रेजेंट एज को. ओके सो ट्राई टू सॉल्व. ओके ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं एक टेबल ड्रॉ करना चाहूंगा. सो क्वेश्चन नंबर 14 टेबल कुछ इस तरह से होगा. यहाँ पे होगा पर्सन, फिर यहाँ पे होगा प्रेजेंट एज, और फिर 5 year hence, 5 year hence and 5 year ago. चलिए दो पर्सन की बात की हुई है. एक है जैकब एंड हिज सन, जैकब एंड जैकब सन. सपोज कर लेते हैं कि जैकब की एज है x और उसके बेटे की एज है y. चलिए आफ्टर 5 years यानी कि 5 year hence इसकी एज क्या हो जाएगी, अभी इतनी है तो आफ्टर 5 years x plus 5 सेम y plus 5. चलिए 5 year ago अभी x है सो 5 साल पहले x minus 5 थी, 5 साल पहले y minus 5 थी. अब क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जैकब will be 3 times to his son कब 5 year hence. चलिए तो ये जो इनइक्वालिटी है इसमें से मैं एक फर्स्ट इक्वेशन बनाऊंगा. वो क्या है, सपोज कि ये 5 साल बाद जैकब की एज और ये इसके बेटे की एज. उसकी बेटे की एज में मैं 3 मल्टीप्लाई कर लूं तब इन दोनों की एज क्या होगी, इक्वल हो जाएगी. चलिए तो ये क्या हो जाएगा x plus 5 which is equals to 3y plus 15. ये दोनों इस तरफ आ जाएगा. सो x minus 3y minus 10 which is equals to 0. ये आपका फर्स्ट इक्वेशन. तो ये सेकंड इक्वेशन क्या होगा, सेकंड इक्वेशन ये है कि 5 years ago Jacob's age was 7 times to his son. यानी कि सेकंड केस में क्या किया मैंने, 5 years ago में ये है जैकब की एज और ये है उसके बेटे की एज जो 7 टाइम्स है. ओके सो क्या हो जाएगा यहाँ पर भी x minus 5 which is equals to 7y minus 35. इन दोनों को इस तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा x minus 70y plus 30 equals to 0. गिवन इक्वेशन नंबर 2. देखो ये minus 35 इस तरफ क्या हो जाएगा plus 35 minus 5 30. इजी. चलिए अब ये दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. मैं कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1. From equation 1 we get x
minus 3y minus 10 which is equals to 0. x को सब्जेक्ट बनाओ, so 3y plus 10 ये हुई x की वैल्यू. गिवन इक्वेशन नंबर 3, पुट x is equals to 3y plus 10 in इक्वेशन नंबर 2. चलिए इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट करता हूँ x की. इक्वेशन नंबर 2 क्या है? x minus 7y plus 30 is equals to 0. x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 3y plus 10 minus 7y plus 30 is equals to 0. तो ये क्या बन जाएगा? ब्रैकेट ओपन कर दो, कुछ प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है. ये हो जाएगा minus 4y plus 40 is equals to 0. 4y goes to this side, become positive. 4y which is equals to 40. So y is equals to क्या होगा आंसर? 10. y क्या था? Jacob's sum की percentage. So percentage of the Jacob's sum 10 year. चलिए फिर ये वैल्यू आपको करनी है, ये वैल्यू पुट करनी है क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 3 में. So the put y is equals to 10 in equation number 3. So x which is equals to 3y plus 10, therefore x which is equals to y is equals to 10 plus 10, 10 is 30, 30 plus 10, 40, 40. So x which is equals to 40. So Jacob's sum is 40 year and his son age is 10 year. So this is your question. आज हम इतना रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ नेक्स्ट टॉपिक. तब तक के लिए बाय बाय.